Hello student, class 10. Myself Yogesh Kumar. We will be studying nutrition in human being. What is nutrition? Intake of food is known as nutrition, and their utilization. Intake of food and their utilization is known as nutrition. Okay. In human being, opening, a aperture is known as mouth. A tube running from mouth to anus. A tube running from mouth to anus is known as alimentary canal. When we take food into mouth, then it goes into buccal cavity. In the buccal cavity found teeth and tongue. Teeth is responsible for breakdown of food particle into small pieces, and tongues move that food particles. In the buccal cavity found salivary gland. That gland secretes saliva. In our mouth, buccal cavity having salivary gland that secretes saliva and mix into food, and formation of bolus. The food digestion is start from the mouth. Okay. Then when saliva mix into food, form bolus and move into esophagus or food pipe. From mouth, food pass out into esophagus. In the esophagus region having peristaltic movement, contraction and relaxation. This is why food come into stomach. In the stomach, food is stored 2 to 3 hours. From the stomach, secrete. The stomach wall secrete HCl. Stomach wall secrete HCl, and stomach is covered by a membrane. That membrane is known as mucous membrane, which protect stomach wall from the effect of HCl. Mucous membrane. HCl kill the pathogen which come with food in our stomach, then and form the food acidic. When food transfer from stomach to small intestine, then pancreas secrete two substances, pancreatic juice and insulin. Pancreas is known as also mixed gland because it is just secrete pancreatic juice and insulin hormone. The pancreatic juice from pancreatic duct open into small intestine. Pancreatic juice from pancreas reach to the small intestine, and from the liver, bile juice collected in the gallbladder. Bile come in small intestine through bile duct and mix with the pancreatic juice. The bile convert acidic food into nucleotides, and complete digestion takes place in the small intestine because small intestine also secretes some gastric juices which break down the food into their smallest molecule. For example, carbohydrate break down into
glucose, fat into fatty acid, protein into amino acid. In the small intestine, small numerous hair-like structure. That structure is known as villi. That structure is known as villi, which is responsible for absorption of nutrient from the small intestine and goes to the blood. And undigested food from the small intestine, undigested food from small intestine goes to the large intestine. Here, water and minerals are absorbed in the large intestine. Large intestine, also known as colon. The undigested food is stored in the sac-like structure. That structure is known as rectum. And after storage, waste material or undigested food remove out through the anus. ओके, अब देखिए बेटा, माउथ जो होता है क्या होता है, एक ओपनिंग होती है हर ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है, माउथ होता है और क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। माउथ हमारा बेटा जो इतना है, हम कहते हैं जाओ दूर होकर, मतलब ये नहीं, ये तो हमारा पूरा फेस हो गया। माउथ जो ये है, जो ओपनिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। फूड को हम इंटेक करते हैं, लेते हैं, माउथ के द्वारा जाता है कहाँ पर, ये जो हमारा कैविटी है उसी को हम क्या कहेंगे, बकल कैविटी। और बकल कैविटी में हमारा क्या पाया जाता है, टीथ होता है और टंग होता है। तो टंग जो होता है फूड को क्या करता है, मूव करता है, और टीथ जो होता है फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और माउथ में ही टंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। और नियर द ईयर के जो है समीप क्या पाया जाता है, सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, साइवा सेक्रेट करता है और फूड में मिला देता है, जिसके कारण जो होता है फूड हमारा क्या लगने लगता है, मीठा। जब हम किसी चीज को या रोटी को क्या करें, ज्यादा देर तक चबाएं तो क्या होने लगती है, मीठी होने लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं, सलाइवा। सलाइवा मिक्स होने के कारण क्या लगने लगता है, मीठा। अब देखिए, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ता है। यानी हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, माउथ से। इसीलिए किसी भी चीज को हम अधिक देर तक चबा कर खाएं तो क्या होता है, वो मीठा लगने लगता है। अब उसके बाद देखिए, जब वो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो फूड कहाँ ट्रांसफर होता है, फूड पाइप में या आसोफेगस में। अब आसोफेगस से फूड, आसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट जो होता है अनैच्छिक मूवमेंट होता है, इस पर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और फूड आ जाता है कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक जो होता है एक जे शेप क्या है, ऑर्गन है। और इसमें क्या होता है, फूड 2 से 3 घंटे तक क्या होता है, इसमें रहता है। उसके बाद स्टमक वाल क्या करता है, ये सीएल सेक्रेट करता है। और म्यूकस, स्टमक वाल जो होता है कवर्ड होता है किसके द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। और ये क्या करता है, ये सीएल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, ये सीएल के इफेक्ट से स्टमक को क्या करता है, बचाता है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से फूड क्या हो गया, एसिडिक हो गया। और ये सीएल जो होता है फूड को एसिडिक बनाता है और क्या करता है, जो पैथोजन होते हैं उसको किल करने का काम करता है। उसके बाद बेटा फूड जो होता है कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, बिलो द स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी बिलो द स्टमक हैविंग अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी लीफ के जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जो होता है 2 सबस्टेंस रिलीज करता है, एक इंसुलिन और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। अब देखो, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस मिल जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। और वो स्टोर होता है जिसमें गाल ब्लैडर में। और बाइल डक्ट के द्वारा ये आकर किससे मिल जाता है, पैंक्रियाटिक डक्ट से। इससे मिल जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट से, फिर दोनों मिक्स होकर क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। और फूड का जो होता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सब जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, विली के द्वारा। विली जो होता है हेयर की जैसी संरचना होती है। उसके बाद जो होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का होता है और मिनरल्स का होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, रेक्टम में आकर कलेक्ट होता है, फिर क्या होता है, एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये आपका क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।